pre-multiplying by A inverse. We are given linear equation, we can write in matrix format, that can be written as Ax is equal to B. That equation pre-multiplying by A inverse, so we get x is equal to A inverse into B. Is that clear? Then A inverse can be found by two methods. First method is adjoint method and second method is row transformation method. If it is mentioned that by elementary transformation method or matrix method, then only go for row transformation method, otherwise we can go for adjoint method only. Now the last part of our chapter matrices is to solve the given linear equation, by the method of reduction, और एक सबसे इजी मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन. इज दैट क्लियर? मेथड ऑफ रिडक्शन. मैं थोड़ा मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ाने से पहले आपको दिमाग में एक डेफिनेशन डाल दूँ. दैट इज डेफिनेशन फॉर either upper triangular matrix or lower triangular matrix. Upper triangular matrix और lower triangular matrix, उसका आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो ये हम लोगों का काम जल्दी हो जाएगा. यशराज, can you help me how to write the given equation in the form of matrices? Please बेटा. सर हाँ, मतलब समझा नहीं. कैन यू रीड द इक्वेशन? यस सर. हाँ बोलो. x plus 3y plus 3z is equal to Yeah, 12. so A matrix can be written first row as what? 1 3 3 Second row, 1 4 4 next. 1 3 4. What about X matrix? X matrix, the first column will be changed by 12 No, 15 my and dear. 13. No, my dear. X matrix is the matrix of variables, that is X, Y, Z. X, Y, Z should be written in row 1, row 2 and row 3. And what about B matrix? Don't know sir. B matrix, it is equal to constant 12, 15, 13. May I help you? Is that clear beta? Is it your A matrix is 1 3 3 1 4 4 1 3 4, right? Yes sir. Your X matrix will be variable X, Y, Z, and your matrix B will be the constant numbers 12, 15 and 13. Is that clear? Yes sir. अच्छा बेटा, मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बोला था याद रखने के लिए. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से करूँ कि ये 1 की जगह पे 0, इस 1 की जगह पे 0 और यहाँ पे 3 की जगह पे 0 लेके आऊँ, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? चलिए सब Yes लोग. sir. वैष्णवी, क्लियर बेटा? ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स.
बेटा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और अगर मैं इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, ऑफकोर्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते वक्त ये जो 12, 15 और 13 है इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ सम कांस्टेंट 1, 2, 3 मैंने रैंडमली लिया है, कुछ भी नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए 1, 2, 3, क्योंकि अगर मैं इसको 0, 0, 0 करने की कोशिश करूंगा तो सेम ऑपरेशन आई हैव टू फॉलो ऑन दी राइट हैंड साइड टू, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जो इक्वेशन दिए थे वो 3 वेरिएबल के इक्वेशन थे, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। मैं इन इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, मैं इन इक्वेशन को रेड्यूस कर रहा हूँ, मैं इन इक्वेशन को रेड्यूस कर रहा हूँ। आई मीन टू से दैट आई एम ट्राइंग टू रेड्यूस 3 वेरिएबल इक्वेशन in either 2 variable equation or 1 variable equation. I try to read this third row multiplication. If I try to multiply third row after getting 0 and 0, is that clear? So I will get 0x plus 0y plus 4z is equal to some number. Is that clear? So we can get the value of z. If I multiply this second row, I will get the expression in y and z variable which is equal to 2. I can put the value of z to get the value of y. Of course, the first equation is in the form of xyz. I can put the value of yz in first equation to get the value of x. चलिए इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे जीरो लाने के लिए मुझे आप लोग हेल्प करोगे, मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ? वेट मिनट। हाँ बेटा यहाँ पे मेरे को जीरो लाना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ? आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए मुझको, बोलिए। R2 minus R1. R2, R2 is हाँ R2 माइनस R1 चलेगा बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। R2 yes. माइनस R1 और फिर यहाँ पे जीरो लाने के लिए बेटा क्या करूँ? R3 minus R1. R3 माइनस R1 करूँ। R3 माइनस R1, ये जो ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन मुझको यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes. अब बेटा ये अगर आप ऑपरेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, जरा बताइए प्लीज। बेटा अगर ये मैं ऑपरेशन करता हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करते रहिए बेटा प्लीज। Well, 3, 1. हाँ हाँ बेटा बोलिए। Side वरती first row is 1, 3, 3 आणि second row is 0, 1, 1. Third row 0, 0, 1.
Hello. 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 हेलो बोल। सर कुछ बोल नहीं रहे या सिर्फ मुझे सुनाई नहीं दे रहे? हेलो सर कुछ बोल नहीं रहे, हेलो सर म्यूट पे है। अभी बोल रहे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ इतने टाइम से मैं अकेला डिस्कनेक्ट हो रहा था या सब हो रहे थे? है इतने हेलो टाइम बेटा से मैं चलो। अकेला ही डिस्कनेक्ट हो रहा था क्या? हाँ तो अकेला डिस्कनेक्ट हो रहा था बेटा। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो। चलो बेटा हाँ चलो ठीक है आंसर चलो। बोलो। चलो आंसर क्या है बोलो बेटा। R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। आंसर क्या है बोलो बेटा। फर्स्ट रो 1 3 हाँ सेकंड रो 0 गौरवी तेरा आवाज एंड बहुत राइट साइड गौरवी में रुक गौरवी रुक गौरवी रुक आवाज तेरा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। बाकी सब लोग म्यूट पे जाओ बेटा। गौरवी को बोलने दो। म्यूट पे जाओ बेटा सब लोग। गौरवी बोल। बोल गौरवी आराम से बोल बेटा। यस गौरवी प्लीज। सर फर्स्ट हाँ बोल गौरवी। सॉरी गौरवी का आवाज नहीं आ रहा है शायद। और कोई बोलेगा बेटा। गौरवी आपका आवाज नहीं आ रहा है। यश तू बोलेगा बोल। हाँ सर हाँ गौरवी बोल। फर्स्ट रो 1 3 3 हाँ सेकंड रो 0 1 1 एक मिनट बेटा 0 1 1 में लिख रहा हूँ। एंड हाँ थर्ड रो थर्ड रो 0 0 1 0 0 1 अच्छा गौरवी। और XYZ तो आएगा ना अपना यहाँ पे पढ़ा है वो है ना। हाँ वो XYZ भी आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा इज इक्वल टू क्या है बेटा बोलो। 12 3 2 एक मिनट हाँ 12 3 3 और 2। 2 हाँ बेटा कैन यू हाँ मल्टीप्लाई सर दिस। हाँ बेटा बोलो। 1 आएगा 12 3 1। 12 3 1 आएगा। हाँ या सॉरी या हाँ 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 ये हम लोग को ऐसा परेशान मत करो बेटा। 1 आए तो 1 आए ठीक है यार। हाँ हम लोग परेशान करो। हाँ बेटा गौरवी कैन यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस डू हाँ यू सर या प्लीज कैन यू हेल्प मी। x plus 3y plus नो बेटा नो 3z बेटा नो बेटा नो बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन थर्ड रो। third row या z equals to 1 thank you very much beta. Can you see here that the given question is of 3 variable and we are trying to reduce it in the terms of 1 variable then 2 variable and 3 variables. Are you getting my dear? This is known as a reduction method from 3 variables to reduce to 2 variable and 1 variable and the operation
what answer we are getting is, you can see easily here, it is a upper triangular matrices, right my dear? Is that clear, beta ji? Gauravi? Yes, sir. Gauravi, Yes, sir. can we get directly the value of z is equal to 1, right? Huh. And from the second row, yeah, can you multiply this second row? Can you multiply Y second? plus Z equals to 3. And we know the value of z is equal to 1, right? Yeah. So y is equal to 2. Okay. Then what about the first row? X plus 3Y plus 3Z equals to 12. And we know the value of y is 2 and z is 1, right? So can we substitute and get the value of x? X equals to 3. X is equal to 3. So my dear, that's in about chapter matrices. But this is as per 12 standard new textbook. You can able to solve any questions from your chapter matrices. Some word problems are there, तो वो आप लोग बचपन की यादें सुन सुन के वो कंप्लीट कर सकते हो. वर्ड प्रॉब्लम्स, चैप्टर मैट्रिसेस. ये यहाँ से चालू हुआ है चैप्टर मैट्रिसेस फ्रॉम पेज नंबर 36. पेज नंबर 36 से चालू हो जाएगा मैट्रिसेस, जो ख़त्म हो जाएगा 36 से. ये बाकी आप लोग क्या करना है देख लो. 36 से टोटल ख़त्म हो जाएगा. एक ही मिनट. हाँ, सर लेक्चर खत्म कर रहे हो अभी. 36 to 64. Mayank, thank you very much for the chapter matrices. Lecture is over. आप सब लोग matrices चैप्टर करते रहो. Enjoy it. Thank you, hard. sir. चलो बाय Thank you, बेटा. sir. 12th Bye. standard matrices is over. बाय बेटा. चलो. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर.